Good afternoon, Dr. Preeti, and welcome to our series of trying to acquaint patients with the various aspects of cancer treatment during the COVID times. We've had something on radiation, chemotherapy, and surgery, and knowing that diet plays an extremely important role for the treatment of cancer. We were very happy that you have agreed to be a part of our endeavor during this time. So, warm welcome to you. Preeti has been with the Hinduja Hospital earlier, followed by which she joined the pediatric department in Tata Memorial Hospital and then the adult department. And she hopefully will be here for a very, very long time for us to benefit. I've heard her speak on various occasions and I think she's extremely knowledgeable and explains things बहुत simple तरीके से. तो वो English और हिंदी दोनों में बात करेंगे ताकि सबको समझ में आ जाए. जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो फेसबुक पे भी कमेंट कर सकते हैं और अगर चाहिए जो जूम है वो जूम पे कर सकते हैं. So over to you, Dr. Preeti, and maybe we start with diet and the importance in chemotherapy, radiation and surgery. Thank you so much. पहले तो मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी वंदना मैम का और वी केयर टीम का for inviting me here. So let's start with a little basic why important diet is in chemoradiation and surgery. As we know, the kind of disease cancer is, we need to make the body prepare to go through the therapy that is being planned. So it's very important how the treatment would be tolerated by the patient, how the response would be depending on the nutrition that the patient takes. So it's very important. Secondly, there are no generalized guidelines for the patient. So it depends on the diagnosis of the patient. We call it ABCD in our nutrition assessment. So basically the nutrition assessment, the biochemical parameters, clinical symptoms, and how is the patient is been eating. So accordingly, we decide the kind of diet. Of course, the diagnosis, the kind of treatment. So some patients would be only on, say, oral chemotherapy. Some would be on CTRT, especially head and neck cancers, for example. Or it could be radiation only. So depending on that, we decide. Along with that, we have different diagnoses. Like if we have head and neck cancers and esophageal cancers, they have जिसे dysphagia कहते हैं, जो खाने में निगलने में दिक्कत करता है. ये एक बहुत ही peculiar symptom है patients के लिए. तो accordingly, या some patients who are above 60 और जिनको दांतों का problem है, जैसे denture issues है, चबाने में दिक्कत है, तो उसमें consistency में फर्क होता है diet में. Some patients have, of course, we will be discussing about the symptoms and all also. So some treatments will cause certain symptoms also, like nausea, vomiting, या radiation की वजह से भी निगलने नहीं होना, especially head and neck cancers में, या sometimes lung cancers में भी. तो वैसी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से फेज में पेशेंट है, उसके हिसाब से हमें डाइट का हम डिसाइड करते हैं. और दूसरी बात, पर एक ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देना बहुत जरूरी है. पर वही अगर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है या जो हार्मोन रिलेटेड कैंसर्स है, जैसे सीए प्रोस्टेट हो गया या ओवेरियन कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, अगर इनका वेट अच्छा है, मीनिंग उनके हाइट के हिसाब से, या उनकी अगर हम वेट हिस्ट्री देखें 6 months बैक, अगर हम देखें कि ज्यादा वेट लॉस नहीं किया हुआ है, जैसे बस 1 or 2 kgs और वेट इज बीन मेंटेन, तो हमें हाई कैलोरी देने की जरूरत नहीं है. प्रोटीन, जैसे अगर आप देखें भी थोड़ा लिटरेचर या रिसर्च भी देखें, इंडिया, ओवरऑल इंडिया, we don't even eat, we have something called as RDA, okay, recommended dietary allowance, so which is 1 gram per kg body weight. तो जितना आपका वजन है एटलीस्ट उतना तो हमें प्रोटीन लेनी है. तो ऑलमोस्ट 50% भी हम उतनी प्रोटीन नहीं ले पाते हैं. तो जैसे कैंसर जैसी बीमारी है, इसमें हमें देखना है कि आपका प्रोटीन का एम्फोसिस अच्छे से हो. ठीक है, तो प्रोटीन वगैरह में क्या आता है वो हम आगे देखेंगे ही. तो ये सब चीजें बहुत देखनी जरूरी है. प्लस जैसे मैंने बोला कंसिस्टेंसी, इवन फॉर चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चे जिनको कैंसर है, जहाँ पे कैंसर है, जैसे मैंने बोला कभी कभी because of the location of the tumor, also the food consistency, the kind of food also gets differentiated into that. Plus preferences, जैसे एक टर्म है इसे learned food aversions. I mean just imagine कीजिए अब बंगाली patient saying no to rice,
जो उन्होंने पूरा लाइफ टाइम खाया हुआ है और अभी अचानक से उनको अच्छा नहीं लगने लगता है। वैसे ही बच्चों के साथ भी, या कोई भी आप अडल्ट भी ले ले, जो भी ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं मोस्टली कीमोथेरेपी, उसके बाद कुछ कुछ चीजें पसंद आना बंद हो जाती है, जैसे रोटी नहीं खाना चाहते हैं या चावल नहीं, जो उनको बहुत पसंद है। तो ये सब चीजों के लिए भी हमें क्या करना है वो हम आगे देखेंगे ही। तो यूजुअली अगर हम देखें तो अच्छे से प्रोटीन युक्त संतुलित आहार देना हमारा बहुत जरूरी है। तो सब्जियां, आपके फ्रूट्स, जो फल है, जो आपको सीजन में फल मिले, तो प्लीज जो फल बाहर से आ रहे हैं अभी स्पेशली कोविड टाइम में, अगर आपके पास आसपास जो आपको फ्रूट्स दिखते हैं आपके मार्केट में, वो खरीदिए। कोई भी सुपर फूड नहीं है कि कीवी खाने से प्लेटलेट बढ़े, या हम वो मिथ्स वगैरह भी आगे देखेंगे, या कोई पर्टिकुलर फ्रूट खाने से कुछ काउंट्स बढ़ते हैं, तो ये सब बिल्कुल ठीक नहीं है। आई मीन ये बिलीव्स एकदम मिथ्स हैं, गलत फहमियां हैं, वी कैन से। ठीक है, तो जो आपके सीजन में आप जहाँ रह रहे हैं वहां पे आपको जो फ्रूट्स मिले, सब्जियां मिले, अच्छे से धो के अच्छे से पका के आप खाइए, और वो ही एक अच्छा न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट रहेगा। ऑफ कोर्स पानी भी बहुत जरूरी है कि हाइड्रेशन आपका अच्छा रहे। एटलीस्ट हम बोलते हैं कि कीमोथेरेपी जो पेशेंट है, एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर तक पानी अच्छे से पीना जरूरी है। और दूसरी बात, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगी कि अभी जो भी हम ये पूरे वेबिनार में डिस्कस करेंगे, ये सब मेरे पर्सनल व्यूज हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आई कम फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन, बट दीज ऑल आर माय पर्सनल व्यूज, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपको जो भी ये डाइटरी हम जो चीजें बताएंगे वो बहुत जनरलाइज बताएंगे। तो आप आपकी हॉस्पिटल में जो डाइटिशियन रहेंगे, अगर आप हॉस्पिटल से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज, या अगर आप सर्वाइवर हैं या आपको कोई डाइट की जानकारी चाहिए, तो आप एक अच्छे डाइटिशियन के पास, क्वालिफाइड डाइटिशियन, अच्छा मतलब है जिनको क्लिनिकल एक्सपीरियंस हो, हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि मुझे पता नहीं नॉर्थ साइड वगैरह ऐसे मैंने ज्यादा सुने नहीं है डाइटिशियंस के बारे में। तो आपको देखना है कि जिनको ऑन्कोलॉजी का अच्छे से एक्सपीरियंस हो, कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करा हुआ, उनसे आप प्लीज सलाह लें। तो ये हम बहुत जनरल चीजें बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जैसे फ्लूइड का, मैंने जैसे बोला, पानी आप 2.5 से 3 लीटर तक ले सकते हैं, पर यही कोई पेशेंट को रीनल या किडनी का इशू हो या कोई डायलिसिस पे हो, तो ये सब चीजें बहुत अलग हो जाएंगी। या किसी किसी को हार्ट का इशू रहता है, जैसे हम बोलते हैं इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह कुछ कम हो, तो उसमें भी फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन रहता है, या सोडियम कम हो तो किसी को फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कहाँ होगा, माने पानी या ओवरऑल जो लिक्विड चीजें हैं वो कम करनी होंगी। तो वो आपको, इसलिए टेलर मेड चीज नहीं है, तो ये आपको डॉक्टर से आपके या डाइटिशियन से आपको अच्छे से पूछ के फिर आपको ये फॉलो करना है। तो ये जो चीजें मैंने बहुत जनरलाइज बताई हैं। कीमोथेरेपी में जो कहते हैं कि कीमोथेरेपी में सब लोग कहते हैं कि हमेशा अल्कलाइन खाना खाना चाहिए, वो सही है या गलत? और दूसरे, बहुत बार पेशेंट्स कहते हैं कि हमको नारियल पानी पीना है लेकिन हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सब कहते हैं कि नारियल पानी बहुत अच्छा है, तो रेडिएशन पे स्पेशली। तो मे बी अगर आप ये दोनों बातों को क्लैरिफाई कर दें तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो अल्कलाइन डाइट अगर आप देखेंगे तो ये बहुत आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है, हम एलोपैथी फॉलो करते हैं। दूसरी बात, अल्कलाइन डाइट अगर हम देखेंगे तो उसमें चिकन, फिश, एग्स, ये जो नॉन वेजिटेरियन है ये पूरा बंद करा देते हैं, ठीक है। और पल्सेस में भी कोई राजमा वगैरह जैसे बोलते हैं कि बहुत एसिड क्रिएट करता है, ये ऐसे कुछ कहते हैं, पर मेरे हिसाब से जैसे मैंने बोला अल्कलाइन डाइट ऐसा कुछ है नहीं, बिकॉज अगर आप ये मैं पेशेंट्स को भी समझाती हूँ, अगर आप स्टमक का एसिड देखें, जो HCl जो रहता है, जो खाना पचाता है, वो इतना एसिडिक रहता है कि बस एक बूंद पड़े तो हाथ जल जाए, तो वो इतना ऑलरेडी एसिडिक है, तो कोई खाना अल्कलाइन जैसे नहीं होगा। और अपना हमारे बॉडी में ऑलरेडी अच्छे मैकेनिज्म्स हैं जिससे हमारा पीएच मेंटेन रहता है। दूसरी बात, नारियल पानी हम हमारे पेशेंट्स को मना करते हैं, क्योंकि एक तो पहली तो सैनिटेशन और हाइजीन, कौन से प्रोसेस में आप वो नारियल पानी ले रहे हैं, जैसे अगर वो साफ सुथरा नहीं है। दूसरी बात, नारियल पानी ले लो बोलने के बाद पेशेंट 2-2, 3-3 नारियल पानी ले लेते हैं। कभी कभी पोटेशियम जो एक ब्लड पैरामीटर है वो बढ़ जाता है, और अगर वो बढ़ जाए तो वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए तो ये 2 कारणों की वजह से, प्लस नारियल पानी लेने से आपकी जो प्रोटीन है, तो अगर आप नारियल पानी ले ले, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, जो भी लाइव है, आप 1 गिलास नॉर्मल पानी पी लीजिए और देखिए कि आपको कभी भूख लगती है। ऑलरेडी पेशेंट्स को कम भूख लगती है बिकॉज ऑफ द थेरेपी, बिकॉज ऑफ मे बी मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस। उसमें अगर आप
जो ऐसी चीजें खाएंगे जिसमें प्रोटीन नहीं है या कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, तो ये चीजों से बिल्कुल फायदा नहीं होगा और वजन घटने में वगैरह उसका पर्याप्त हो सकता है। तो इसके लिए ये हम अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। उसके अलावा आप चने का सत्तू लें, वो भी बहुत ठंडा है शरीर के लिए। छाछ ले सकते हैं, सब्जा जिसे कहते हैं, काले रंग के बीज आते हैं, वो आप भिगो के ले सकते हैं, जिससे भी शरीर में ठंडक आ सकती है। तो सिर्फ नारियल पानी लेने की जरूरत नहीं है, या नींबू पानी, कोकम शरबत वगैरह भी ले सकते हैं, जिससे शरीर में ठंडक आएगी और फ्लूइड इंटेक बढ़ेगा। आपने कहा कि 3 लीटर पानी हम लोग को पीना है, हाँ तो जी, वो पानी के ही फॉर्म में पीना है, या वो हम जूस या दूध या छाछ सब मिला के 3 लीटर कर सकते हैं? हाँ जी, आप कोई भी फ्लूइड, जैसे मैंने बोला, छाछ है, दूध है, ठीक है, ये फॉर्म में ले लीजिए, पानी भी मिला के। कभी कभी क्योंकि पानी पीना भी नहीं हो जाता, इतना 3 लीटर पानी भी पीना मुश्किल हो जाता है, तो आप उसमें, जैसे मैंने बोला, थोड़ा नींबू मिला दीजिए, थोड़ा अदरक मिला दीजिए, उससे भी थोड़ा मुंह में स्वाद आ जाएगा और भूख भी अदरक से लगने में बहुत मदद होती है। तो आप ये फॉर्म में भी ले सकते हैं। So while you are having surgery, like say it is a surgery of the stomach or something like that, is there anything that you recommend during that time, or it's the same normal? Post I mean, I surgery, know specifically you can't say because it may be different I will. organ, but Post surgery, ma'am, right? Yeah. So basically, stomach surgery, if we take, or maybe any GI surgery, okay, any small intestine or stomach surgery, पहले तो हमें देखना है कि कितना पार्ट, हम देखते हैं कि कितना पार्ट निकला हुआ है, whether it is total gastrectomy, distal gastrectomy. If it is total gastrectomy, there is something called as dumping syndrome, which happens, meaning थोड़ा भी खा के एकदम से घबराहट होना या एकदम से लूज मोशन हो जाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए हम पहले ऑफ कोर्स क्लियर लिक्विड्स वगैरह चालू करते हैं, फिर धीरे धीरे थोड़ा हल्का खाना, जैसे खिचड़ी वगैरह हो गया, जिसमें थोड़ा कम स्पाइस और ये हो, या क्योंकि उसकी वजह से कभी कभी बहुत एसिडिटी वगैरह भी हो जाती है, तो इसलिए हमें एक सादा खाना, जैसे दाल चावल हो गया या खिचड़ी हो गया, दही चावल हो गए, जो थोड़े कम तेल में बनाए हुए हैं, क्योंकि उतनी पाचन शक्ति नहीं रहती है कि एकदम से बहुत ऑयली मसाले वाला खाना लिया जा सके। तो इससे हम शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे हम देखते हैं कि कितना पेशेंट का इंटेक है, उसके हिसाब से प्रोटीन सप्लीमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी मैं बताना चाहूंगी कि प्लीज आप कोई डाइटिशियन को अच्छे से कंसल्ट करके आप प्रोटीन सप्लीमेंट लें। जस्ट बिकॉज कोई टीवी पे ऐड आ रहा है या कोई आपके रिश्तेदारों में रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए वो ऐसे ब्लाइंडली मत लीजिए, क्योंकि उसका भी डोसेज रहता है। हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को हम इतना रिक्वायरमेंट है, उससे अगर सिर्फ 50% खा रहे हैं पेशेंट, तो हम उतना बाकी का 50% कोशिश करेंगे कि हम सप्लीमेंट से करें, तो उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। I'm glad you brought up this point, because often everybody in the family or nearby neighbors, everybody starts to guide you and tell you what you must eat and what you must not eat, and that may not be the right diet for the patient. So I'm glad this point has come up, that you must consult a dietitian and then take the thing. So that is important. Now, very often there are many things which come during the treatment, like mucositis हो जाता है, या फिर anemia हो जाता है, या इस टाइप का. So you would know the different conditions. So for each condition, if you can tell us some things that we can be useful. Absolutely. So we will start with a very common thing, जिसे बोलते हैं भूख ना लगना। पेशेंट बोलते हैं कि भूख नहीं लग रही है, और दूसरा एक होता है कि भूख लग रही है पर खाने की इच्छा नहीं हो रही है। तो अगर भूख नहीं लग रही है, तो पहले पेशेंट के रिलेटिव्स को देखना है कि कौन से टाइम पे भूख लगती है। कोई कोई पेशेंट को शाम को लगती है, कोई कोई पेशेंट को सुबह लगती है, रात को खाने का ही मन नहीं करता है। तो ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है, जैसे मैंने बोला। तो आप पहले, इसलिए हम एज अ डायटिशियन भी हॉस्पिटल में उतना टाइम इन्वेस्ट करते हैं पेशेंट के साथ बात करने के लिए कि उनको क्या लग रहा है। कभी कभी बहुत सोचने की वजह से भी लगता है कि नहीं मन कर रहा है, ऐसा। तो आपको पहले देखना है कि कौन से टाइम पे भूख लगती है। दूसरी बात, आप एक ही प्लेट में बहुत सारा खाना सजा के मत दीजिएगा। आप देखो कि एक कंबाइन करके, मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे सिर्फ दाल चावल देने से अच्छा है आप चावल दाल सब्जियां मिला के, या चावल और जो साबुत हमारे मूंग चना छोला जो रहते हैं वो डाल के, जैसे खिचड़ी या पुलाव बना के। कभी कभी कोई पेशेंट्स को जीरे की स्मेल बहुत अच्छी लगती है, किसी किसी को अच्छी नहीं लगती है,
ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपके जो पेशेंट है उनको क्या अच्छा लगता है, तो इससे आप कंबाइन करके, जैसे सिर्फ रोटी चावल रोटी सब्जी देने से अच्छा है आप रोटी के आटे में ही सत्तू मिला दो या रोटी के साथ थोड़ा सा घी लगा लो। ठीक है, तो जैसे सत्तू और रोटी हम मिलाते हैं तो रोटी का आटा, तो उससे प्रोटीन क्वालिटी बढ़ती है। तो जैसे सीरियल और पल्स, पल्स माने जो भी आपके दालें हैं, मूंग चना छोला, तो मूंग चना छोला और मूंग दाल या मसूर की दाल, ये जो भी दालें हैं, और अनाज, अनाज माने कोई भी हो गया, गेहूं जवार बाजरा नाचनी या मडुआ कहते हैं, इसको आप मिला के आप रोटी बनाइए या कभी पराठे बना सकते हैं। जैसे मूंग चना छोला तो आटा नहीं बनेगा उसका, उसको आप उबाल के ही आप उसको स्टफ करके, या रोटी का आटा गूंदते वक्त ही आप उसको दूध से गूंदिए या छाछ से गूंदिए, या जो मूंग चना ही है उसको ही मैश करके अच्छे से या मिक्सी में प्यूरी करके पानी की जगह पे वो डाल के आप उसका आटा गूंदिए। जिससे क्या होगा, वो एक ही रोटी से उनको दाल की भी ताकत मिल जाएगी, उसमें आप थोड़ी सब्जियां डाल सकते हैं तो सब्जियां भी डाल सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को अंडे की भी स्मेल आती है, तो मैं तो बोलती हूँ मेरे पेशेंट्स को कि आप अंडा भी फोड़ के डालिए, थोड़ी सब्जियां डालिए, अजवाइन डालिए, ना अंडे की स्मेल आएगी ना कुछ आएगा, एकदम से सब कुछ पेट में अच्छे से जाएगा। ठीक है, तो आपको ये मैंने सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि आप 2-3 चीजें कंबाइन करके एक ही इसमें, तो प्लेट में दिखते वक्त क्या दिखेगा, हाँ चलो सिर्फ रोटी है मुझे इतना खत्म करना है। और जैसे हम एक बच्चे को ट्रीट करते हैं, जैसे हम बच्चे को कैसे 10 बार पीछे लग लग के खिलाते हैं, ठीक है, थोड़े अडल्ट पेशेंट तो रहेंगे, थोड़ा सा चिड़चिड़ होती है या थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि बस खाने के पीछे पड़ रहे हैं, ये हम बहुत ही, हमारे जब काउंसलिंग हमारा चलता है तब ये बहुत हमें देखने मिलता है। तो आपको बस एक बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स ये कंप्लेन करते हैं कि पहले बहुत शांत थे अभी एकदम से चिड़चिड़े हो गए हैं, तो आपको ये सब चीजें भी बहुत अच्छे से संभाल के लेनी है। दूसरी चीज, आप थोड़ा टीवी दिखा के खाना खिलाइए, क्योंकि ये थोड़ा साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम किसी चीज में एंगेज हो गए या कोई अच्छे गाने सुनिए, इससे हमें समझ में नहीं आता कि हम कितना खा रहे हैं और थोड़ा ओवर ईटिंग हो जाता है, स्पेशली व्हेन यू डोंट हैव एपेटाइट। जब हम खाने का, ये एज आई सेड ये मेरी ट्रिक्स है थोड़ी, ठीक है, तो ये एज आई सेड इट मे नॉट बी वेरी साइंटिफिकली बट प्रूवन, बट ये मेरे पेशेंट्स के लिए बहुत काम आई है कि खाना नहीं खा रहा है, एटलीस्ट कुछ गाने अच्छे देख के या पिक्चर देख के या कुछ भी टीवी पे देख के उनको थोड़ा एटलीस्ट खाना हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जब भी खाने का मन नहीं करता है या भूख नहीं लगता है। प्लस थोड़ा खाना अच्छे से, थोड़ा कलर रहे, जैसे सब्जियां वगैरह अच्छी आप कलर्स की यूज करें, जैसे सिर्फ आलू, अभी कोई कोई पेशेंट मेरे, स्पेशली मेरे बंगाल साइड के पेशेंट सब सब्जियों में आलू डालते हैं, तो आलू बुरा नहीं है पर आप बाकी की सब्जियां भी यूज कीजिए, जिससे थोड़ा सा कलर रंग भी खिल के आएगा, थोड़ा देखने से भी अच्छा लगेगा। थोड़ा धनिया ऊपर से डाल सकते हैं, और थोड़े गाजर वगैरह थोड़ा सा उसको स्टीम करके सब्जियों में डालें, जिससे, या बच्चों के लिए भी थोड़ा बीटरूट हम रोटी में डालेंगे तो थोड़ा कभी लाल रंग की रोटी या पालक डालने के बाद थोड़ी हरे रंग की रोटी, शायद ये अडल्ट पेशेंट को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो थोड़ा रंग जैसे डिफरेंस हो, वैरायटी हो, जिससे सबको अच्छा लगेगा, तो ऐसे आप खाना देंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। फिर आता है म्यूकोसाइटिस। म्यूकोसाइटिस माने मुंह में Can I interrupt you here for a minute? I have got some messages to say that, if you can speak a little in English also, because there are some people who have joined from abroad. So at least the major terms. Absolutely. Absolutely, I can do. Yeah. So if there is something called as mucositis मतलब मुंह में छाले आ जाना, ठीक है? So if there is mucositis, depending on the degree of mucositis, you can start with a liquid diet, a pureed diet meaning whatever khichdi that you have, rice and dal cooked with little vegetable in it, or rice and lentil cooked vegetables in it. You can put little paneer grated in it, little cheese grated in it, and nicely mash it, okay? Accordingly, you can give it. So it could be pureed diet, it could be simple liquid, so something like fruit mashed in milk, something like banana mashed in milk, you can give, or a mashed fruit. So rather than giving fruit juices, why we say no to fruit juices don't give you fiber. Nowadays, there is huge research going on how fiber is important for any disease for that matter, because our patients don't come in isolation. In the sense, not only cancer, some patients have diabetes plus cancer, or blood pressure plus cancer. So we have to manage everything together. So it's very important that we see our diet is wholesome. The diet is made up of everything, every component like protein, calories, also along with that fiber and vitamins. So it's very important you take pureed fruits, or you can grate the fruit if there is chewing problem, or otherwise, and of course the mucositis or मुंह में छाले रहेंगे तो, so you can grate the fruit and take it. All right.
Sometimes what you can do is with the spoon you can take it. Sometimes, you know, or maybe you can use a straw. Nowadays we have steel straws also available. So you can use the steel straw so that it just bypasses the mucositis which is there in the, you know, in your mouth cavity. All right. If necessary, if the mucositis is at a higher degree, of course, we ask them to put a Ryle's tube and give the feeding. All right. So this is mucositis. Then we come to nausea and vomiting. Okay. So nausea is ulti jaisa hona. You feel like vomiting, but the vomiting doesn't come. Okay. And the other thing would be vomiting. Of course, you would be taking medications and everything, but in food, what you have to do is you have to cool the food. In the sense, you have to take it at room temperature. If you don't have fridge facility, if you don't have refrigeration facility, you can take ice cubes in a kind of a bowl, put little salt in it so that ice doesn't melt. And whatever food that you have, take it in a glass or something or a smaller bowl and put it on that ice so that the food becomes little cooler. Okay. And that is much easier to gulp. Okay. Of course, the consistency and everything would be depending on, you know, how it is. So sometimes mucositis, nausea, vomiting happens together. So accordingly, you have to strategize. All right. Sometimes citrus thing like lime or orange makes it feel good. Sometimes the smell. Some patients are very sensitive to smell also, especially after chemotherapy. So you can just smell the lemon, or sometimes I tell them if you have a soap wrapper, some soaps have very good smell. I mean, this is what my patients say. So I just tell them just to smell on that and then you eat the food. Of course, keep the patient little away from the kitchen. I mean, of course, nowadays we have small houses, but if possible, just keep it little away because sometimes the chalk ka jo smell hota hai, the tempering smell only, you know, the odor causes little nausea. And as I said, if you give it at room temperature or cooled food, that would be much, you know, appreciated since there is no smell. Apart from that, if there is no mucositis or muh ka chhala agar nahi hai, to you can take grated ginger. So grate the ginger, put little salt and lime in it, and just, you know, take that a teaspoon of juice so that there's lesser nausea, there is better appetite. I mean, ginger has been proven to improve the appetite and it will reduce the nausea. All right. Then we come to constipation. Okay, so constipation is paikhana saaf nahi hona. So first you have to see you're sleeping better. Sleep is very important. Other than your high fiber diet. What is high fiber? Your whatever atta that you get. Okay, so it could be ragi, it could be nachni, ragi nachni same, bajra, jawar. Don't strain it. Don't, you know, just take out the fiber from it. Okay, so let the fiber be there. Don't use maida. Okay, we ask patients not to use anything with maida because that has no nutrient in it. All right, so that again will, you know, cause a lot of constipation. Drink adequate amount of water. Walk, be mobile. Okay, so just because there is a disease, if you're feeling better, of course, if you're feeling weak or something, you know, take rest, but otherwise at least after every hour, at least you should walk at least at home. All right, so that mobility also improves. Sometimes some drugs causes constipation, so of course you have to speak to a doctor for some medication, but little warm water and, you know, good fiber in the diet would help. All right, now we come to diarrhea. Very common, diarrhea or loose motions. Okay, so if you feel, you know, after particular therapy, sometimes radiation, sometimes chemotherapy, if you're having diarrhea, of course you have to speak to the doctor first. Secondly, in the diet, what we can do is stop milk, not milk products, only milk. All right, because sometimes milk is not digestible because of the enzymes which are there to digest the milk are not, you know, in adequate amount. So stop the milk first. All right. Start with curd. So freshly set curd. Some patients say dahi se khasi hota hai, ya, you know, they get cold. If you are allergic to cold, leave it. All right. You can take curd, freshly set curd. So we tell them you put it for the setting in the morning. And since now it is summers, it will get easily set. All right. So set the curd in the morning, take it for afternoon, set in the afternoon, take it for your dinner. So that can be taken in the form of buttermilk or normal curd. Don't make kadhi and all of that because the probiotics, what we call, which are better, you know, bacterias which are there, which will get killed if you heat the curd. All right. So you can take curd rice or khichdi rice, khichdi curd would be fine. All right. Or in place of gehu ka roti, you can make chawal ka roti, okay, rice roti or jawar roti. All right. So that will be much easier on the tummy, okay, for the digestion. Along with that, you can use boiled potato. All right. So in this case, you have to use boiled potato. So if it's better if you boil it in the morning and take it in the afternoon and dinner, meaning you boil it in the morning, say 2 potatoes, small potatoes,
or one big potato. All right, you take that, the same boiled potato, you have to take it in the afternoon and evening. What is the purpose of boiling it little earlier? Because that increases your prebiotic. Prebiotic is the food for probiotic, meaning for good bacteria to act on that, whatever the infection is, or whatever the to control the diarrhea, that improves its health by prebiotic. All right, so that is the food for probiotic to grow the good bacteria. So you can take that. Of course, you can put gajar in it. Okay, gajar is also very good. So accordingly, you can manage the diarrhea as well. Okay, and there are some things like xerostomia, मुंह में सूखा लगना. ठीक है, after radiation, especially lot of head and neck cancers, patients would say मुंह में सूखा लगता है. Whatever they take, it feels little dry. So of course you have to take something like roti soaked in dal, or take buttermilk rather than sipping on water along with the food. Sip on buttermilk or sip on thin dal. That would be much better, because water will just fill you up with the just water will just fill you up, and it won't increase the food intake. So accordingly you can manage. I wanted to ask you one thing. जैसे ये होता है ना कि फ्रूट जूसेस वगैरह ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है, पर एट द सेम टाइम मुंह में छाले हैं तो क्या करा जाए? तो कैन वी मेक आइस क्यूब्स, लाइक स्पिनच का सूप बना के उसके आइस क्यूब बना ले और उनको यू सक ऑन दैट, ऐसा कुछ कर सकते हैं? इज इट एडवाइजेबल? तो अगर म्यूकोसाइटिस है, जैसे मैंने बोला, पहली बात तो फ्रूट जूस मैंने रीजन बता दिए क्यों नहीं लेने हैं. अभी अगर आपके पास अच्छा सी, nowadays what the kind of patients we have in our hospital, they don't have staying facility. All right, so if you have good staying facility, good hygiene can be maintained, you can use those ice cubes. But somebody who doesn't have these kind of facilities, you can just keep the fruit in the ice without cutting it. That's the thing that I tell my patients. As I said, you take a bowl, take ice cubes you'll get it anywhere. Put little salt, take the entire fruit in it, dip that fruit into the ice, then you wash it, then you cut it and eat it immediately. All right, because sometimes what happens with the mucositis, the counts are also very low, so we don't want patients to have infection. So something which is kept inside for long, we never know, can cause infection. So we just tell them to take fresh. So this is and if you have a fridge, you can keep it in the fridge. Later you wash it, cut it and give it immediately. So that can be an option. And of course you can grate it or something. So once you put it in the fridge, after you peel it and all, you can grate it and it will become like a puree, and you can take that puree. Or you can mix it in milk and make like a milkshake, is also okay. Yeah. आपने जैसे बताया कि खुशबू फूड की अच्छी नहीं लगती है या कुछ सबके वो नहीं होता है. मुझे जब कैंसर हुआ था और हम लोग खाना खाने बैठते थे, तो मेरे को सबके साथ टेबल पे बैठ के खाना खाना अच्छा नहीं लगता था. अलग बैठ के अपना खाना निकाल के थोड़ी क्वांटिटी में और अलग बैठ के खाने में अच्छा लगता था. हो सकता है कि वो स्मेल की वजह से हो, लेकिन उतने साल पहले शायद कोई बताता भी नहीं था ये सब बातें. अब इतनी बातें हम लोग को पता चल गई है, वो भी अच्छी बात है. एक और चीज है, आई डोंट नो वेदर यू वुड लाइक टू आंसर दैट और नॉट. बहुत बात होती है दूध के ऊपर, चीनी के ऊपर और नींबू के ऊपर, कि नींबू नहीं खाना चाहिए, खट्टा होता है, नुकसान करता है. चीनी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और दूध पीना भी नुकसान वाला है. कुछ आयुर्वेदिक ने बताया कि नहीं, दूध नहीं पीना चाहिए. तो इन तीनों प्रोडक्ट्स पे आपका क्या कहना है? मिल्क, शुगर एंड ये अभी मेरे फिर से मैं बोलूंगी, मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं. तो अभी बहुत सारे मिथ्स हैं. जैसे हमारे पेशेंट्स आते हैं पोस्ट सर्जरी, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स है, एनी सर्जिकल जिनकी सर्जरी हुई है, दे से पस हो जाएगा आफ्टर ईटिंग राइस और लेमन. बट जस्ट प्लीज अंडरस्टैंड, लाइम हैज विटामिन सी, नींबू में विटामिन सी होता है, जिससे एक्चुअली टांके भरने आएंगे. आप जो भी आपका जख्म है वो भरने के लिए मदद करेगा. ठीक है, क्योंकि वो कोलेजन फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज नींबू अगर आप बंद मत कीजिए अनलेस यू आर एलर्जिक टू इट. अगर आपको एलर्जी है उसका तो प्लीज अवॉइड कीजिए. पर अगर एलर्जी नहीं है, एलर्जी माने स्किन पे कुछ रैशेस वगैरह उठना, या आपको पता है कि उससे प्रॉब्लम होती है, किसी किसी को जैसे एग से प्रॉब्लम होती है, तो आप वो देखिए. अगर एलर्जी नहीं है तो प्लीज राइस नींबू बंद करना ये ठीक नहीं है. कमिंग टू मिल्क, ओके, सो जैसे मैंने पहले ही बोला कि हमारा इंडियन डाइट, अगर आप खुद की हमारी प्लेट देखें कि आप देखेंगे कि अनाज कितना है और हमारी प्रोटीन कितनी लेते हैं. ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ रिसर्चेस व्हिच इज ऑनगोइंग
अबाउट A2 मिल्क, A1 मिल्क, ओके, जो गिर काऊ का दूध आता है और बाकी के जो जर्सी गाय का दूध है. अभी एज आई सेड, आई हैव नॉट कम अक्रॉस सेइंग दूध से कैंसर बढ़ता है या दूध से कैंसर होता है. ठीक है, तो मैं कहूंगी कि प्लीज अगर आपको एलर्जी नहीं है या दूध पचता है तो प्लीज आप 2 कप दूध और 2 बार दही या पनीर जो भी आप ले सकें एटलीस्ट वो लें. स्पेशली क्योंकि प्रोटीन अच्छे से लेनी बहुत जरूरी है ये ट्रीटमेंट के दौरान, नहीं तो बहुत ही ज्यादा मैनेजमेंट होने से कभी कभी शायद ट्रीटमेंट हॉल्ट भी करा देते हैं, बंद करा देते हैं, बोलते हैं डॉक्टर्स कि आप अच्छे से न्यूट्रिशन इम्प्रूव करा के लाइए. तो प्लीज दूध वगैरह बंद मत कीजिएगा. तीसरी बात आती है शक्कर की. शक्कर की पर्सनली मैं कहूंगी कि शक्कर या कोई भी शक्कर, गुड़, ये जो भी चीजें, अगर आपके भगवान का कुछ प्रसाद अगर कोई देता है तो प्लीज वो फॉर्म में शुगर लीजिए. अदरवाइज शुगर आप जितना अवॉइड करेंगे, जैसे मैंने बोला बहुत कॉन्क्रीट रिसर्च नहीं है, पर अगर आप देखेंगे शुगर ये न्यूट्रिएंट नहीं है, मीनिंग अगर आप शुगर नहीं खाएंगे तो डेफिशिएंसी नहीं होगी. जैसे मैंने बोला अगर आप दूध नहीं लेंगे या कोई चिकन फिश अंडा नहीं खाएंगे तो प्रोटीन की एक्चुअली डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि अगर आप दालें वगैरह भी ले तो उसमें कार्ब ज्यादा है, प्रोटीन का अमाउंट थोड़ा कम है. ठीक है, तो इसलिए आपको दूध वगैरह तो कंपलसरी है, दूध, चिकन, फिश, अंडा, इसमें से जो भी आप शाकाहारी हैं या नॉन वेजिटेरियन है उसके हिसाब से. पर शक्कर का ऐसा नहीं है, अगर आप शक्कर नहीं खाएंगे तो उसकी डेफिशिएंसी हो गई, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि शक्कर आपको सभी चीज से, शक्कर भी एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है. ठीक है, तो आपको वो सभी चीज से मिल रहा है, ये सिर्फ टेस्ट का चीज है. स्पेशली अगर आप ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स वगैरह देखेंगे या ये जो हार्मोन डिपेंडेंट है, तो आप एक्चुअली रिसर्च देखेंगे तो बोला गया है कि सिंपल कार्ब से उसमें बहुत दिक्कतें आ सकती हैं या उससे रिकरेंस हो सकता है. ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि शक्कर पूरा आपको मना है. ठीक है, पर जैसे मैंने बोला फ्रूट से वगैरह नेचुरल जो स्वीट है, जैसे फ्रूट, कोई कोई फ्रूट नेचुरली मीठे हैं, जैसे केला है, ठीक है, पपीता वगैरह है, ये सब जो नेचुरल फ्रूट है आप उससे मीठा बनाइए. ठीक है, इसलिए आप देखेंगे कि हलवा वगैरह, शीराग वगैरह भी है, तो आप केला वगैरह उसमें एक्स्ट्रा डालेंगे तो वो स्वीट बन जाएगा. और हमें क्या होता है, बचपन से हमें इतना स्वीट खाने की जरूरत है कि वो थोड़ा स्वीट भी ये लगता है, माने कम लगता है. तो इसलिए आपको देखना है कि आप, स्पेशली अगर आप ट्रीटमेंट पे हैं, और अदरवाइज भी जितना आप शुगर अवॉइड करें, ये मेरी पर्सनल राय है कि उतना अच्छा रहेगा कि आप शक्कर कम लें. May I ask one question? Rekha, we will just put the questions on the chat and we will answer afterwards so that we don't break her chain of thoughts. Thank you. प्रीति जी वापस आते. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे पानी आपने कहा पीना चाहिए, लेकिन जैसे अगर कोई किडनी का कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो ऐसे लोगों को पानी की क्वांटिटी कम करने के लिए कहते हैं. हाँ जी, तो अभी किडनी में भी क्या है, स्टेजेस रहते हैं. ठीक है, CKD जिसे हम कहते हैं, what we call chronic kidney disease. So depending on your staging, you have to speak to your doctor or a dietitian accordingly. Or if the patient is on dialysis, अगर आपका dialysis हो रहा है तो आपको आपके डॉक्टर से स्पेशली प्लीज आप सलाह लीजिए, क्योंकि दैट विल डिपेंड ऑन योर यूरिन आउटपुट, आपका पेशाब कितना हो रहा है पूरे दिन का, आपके रिपोर्ट्स कैसे हैं किडनी के, उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा फ्लूइड. वो हमें जब तक रिपोर्ट्स, या आपका GFR वैल्यू हम बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मीनिंग किडनी का कितना कैपेसिटी है फिल्टर करने का, तब तक मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितना फ्लूइड लेना चाहिए, पर ऑफ कोर्स दैट विल बी लेसर देन नॉर्मल. Can we talk about children, because बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है कि क्या खाओ क्या नहीं खाओ. मदर्स के लिए कांस्टेंट प्रॉब्लम रहती है कि बच्चे खाते नहीं है, तो वो उनकी एंजाइटी और एडअप कर देती है. तो इज देयर अ सिंपल वे ऑफ डायरेक्टिंग चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, क्योंकि केयर गिवर्स की बहुत ज्यादा एक्चुअली वो एडल्ट्स में भी होती है कि वो बहुत फोर्स करते हैं बार बार, एंड कई बार पेशेंट इसलिए इरिटेट हो जाता है कि इतनी बार क्यों कह रहे हैं. और बच्चों के साथ तो ये है कि उनको चीजें पसंद भी नहीं आ रही है और क्या खाना है क्या नहीं खाना है. तो बच्चों को केयर गिवर्स कैसे हैंडल करें और फिर केयर गिवर्स की जनरल प्रॉब्लम क्या रहेगी. तो इसमें मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना बहुत ही महत्वपूर्ण समझूंगी. तो व्हेन आई वाज इन पीडियाट्रिक्स इन TMH, ओके, सो आई यूज्ड टू बाय दिस स्टिकर्स, ओके, टू पुट इट ऑन देयर फाइल. सो आई यूज्ड टू टेल देम दैट, बट दैट वुड बी लाइक अ रिवॉर्ड, सो नेवर ब्राइब द चाइल्ड कि आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा. ये बहुत ही गलत चीज है. पेशेंट को, बच्चे को कैंसर हो या ना हो, अदरवाइज भी, तो नेवर ब्राइब योर किड, मीनिंग इफ यू डू दिस देन यू विल गेट दिस, ऑलराइट. Give it as a reward, all right. So
Of course, if the child is very small, of course, that will be little. I mean, sometimes, we actually have to sit with the mother for 1 or 2 hours first to console her, and things will be fine. And, just to give a little, even though we are dietitians, we would be, sometimes would be taking a lot of role of the psychologist also, because food is not like a medicine. You just write it down and you give it, and, you just tell the mother to feed the baby. All right. So it's very important that you कि आप पहले अच्छे से, अगर आप पेरेंट हैं तो आप पहले थोड़ा बच्चे से आराम से, अगर बच्चा समझने के एज में है तो आप उनसे समझाइए, थोड़ा कुछ पिक्चर्स दिखा के. ऑफ कोर्स टेक द हेल्प ऑफ योर डायटिशियन और अ डॉक्टर. Okay, so that would be, we can explain the child why the food would be important. So especially in our ward, we used to take a lot of classes, okay, for the relatives and the children to explain them, show them pictures. Okay, so this, इससे आपको ताकत मिलेगी, या इससे आपके मसल सलमान खान की तरह बनेंगे, something like that. So of course you have to, feel, I mean, just keep yourself in the child's position. Especially, I mean, there are very creative parents nowadays, I know that, which, we can actually make use of that creativity. Secondly, of course, as I earlier explained, use different colors, shapes. Okay, so agar roti hum गोल बना रहे हैं, sometimes you can make a triangular roti. Just give an example. ओके, सो या कभी टेडी बेयर का शेप में राइस और दाल, उससे आंखें बना ली कोई सब्जी से, या ऐसे कुछ क्रिएटिवली हम दे सकते हैं. प्लस अगेन द सेम थिंग कम्स विद द लर्नेड फूड एवर्जन. सो आई वुड लाइक टू गिव दिस टिप. व्हाटएवर द चाइल्ड और एनी अडल्ट आल्सो लाइक्स, कीमोथेरेपी के दिन में आपको मत दे, या उसको कीमोथेरेपी के बाद 3-4 घंटे बाद दे. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी लव्स राइस, कोई बच्चों को चावल इतना पसंद है, रोटी शायद नहीं पसंद. ठीक है, तो आप चावल 3-4 घंटे बाद दे कीमोथेरेपी होने के बाद. कीमोथेरेपी के लिए जब आप ला रहे हैं तब वो खिला के मत लाइएगा. ठीक है, बिकॉज इससे देखा गया है कि वो लर्नेड फूड एवर्जन, मीनिंग दे स्टॉप लाइकिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. सो प्लीज डोंट डू दैट. सो एटलीस्ट वी कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट एंड मेक डिफरेंट रेसिपीज. सो राइस से हम बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं अगर बच्चे को या कोई अडल्ट को ये अच्छी लग रही है. ठीक है, और बच्चों को आपको देखना है कि बच्चे ये बहुत बड़ी ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं, प्लस बच्चों की ग्रोथ हमें देखना है कि बच्चों की ग्रोथ भी बराबर हो रही है कि नहीं, उसकी हाइट वेट बराबर से अच्छे से रह रहा है कि नहीं. ऑफ कोर्स हम एकदम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उसकी एकदम से वेट वगैरह बढ़ जाए. ठीक है, और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि शुगर जूसेस रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. ठीक है, हम ये बच्चों को मना नहीं करते हैं क्योंकि बच्चों की ग्रोइंग एज है. ठीक है, और ये सब चीजें बहुत जरूरी है. पर फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि बच्चों को बहुत जूसेस वगैरह मत दीजिए या बहुत शुगरी चीजें मत दिया कीजिए, क्योंकि उससे जैसे मैंने बोला ताकत नहीं आएगी. 2 मिनट के लिए अच्छा लगेगा क्योंकि वो ब्लड में शुगर बढ़ती है तो 2 मिनट के लिए अच्छा लगता है. ठीक है, पर आप उससे अच्छा, मैंने जैसे बोला, फ्रूट स्मूदी दे दीजिए, फ्रूट मिल्क शेक दे दीजिए, दही में थोड़े फ्रूट्स काट के या फ्रूट की लस्सी बना के दीजिए. जिससे क्या होगा उनको, क्योंकि बच्चे का ऑलरेडी पेट का साइज कम है. ठीक है, बच्चा छोटा है, तो आप उसमें बहुत सारा खाना घुसाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा नहीं खाएगा और शायद बोर हो जाएगा, या उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा. तो इसके लिए हमें देखना है कि हम 2-3 चीजें कंबाइन करके दें. ठीक है, अगर आप बाहर रह रहे हैं तो बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं. तो आप देखें कि आपके पास कौन से इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल है. जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा, बच्चों के लिए स्पेशली मैं कुछ बताना चाहूंगी. आलू, या जैसे कच्चा रतालू बोलते हैं, ठीक है, या कच्चा केला है, उसमें आप सब सब्जियां डाल के टिक्की वगैरह बना सकते हैं. तो कभी कभी क्या होता है, सिर्फ रोटी चावल बच्चे नहीं खाना पसंद करते. तो जैसे बच्चों को बहुत फ्रैंकी पसंद है, बाहर के नूडल्स पसंद है, बहुत सारे बच्चों को आजकल टीवी देख के ये सब बहुत पसंद आता है. तो आप ये घर के घर ही बना सकते हैं. नूडल्स की जगह पे आप सेवैयां जो रहती है उसमें आप सब्जियां डाल के बनाइए. प्लीज वो जो नूडल्स का मसाला आता है वो मत यूज कीजिए. ना अडल्ट यूज करेंगे ना बच्चे यूज करेंगे, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है. ठीक है, मैं ब्रांड नेम्स नहीं लेना चाहूंगी पर आपको पता है. दूसरी बात, फ्रैंकी वगैरह बनाना है तो आप रोटी में ही, जैसे मैंने बोला, कोई टिक्की या कटलेट डाल दिए, उसका रोल बना लिए, थोड़ा केचप वगैरह लगा लिया, थोड़ा बटर चीज ग्रेट करके डाल दिया. तो वैसे आप, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ रोटी सब्जी खिलाओ, वो आप एक फ्रैंकी भी बच्चा खाएगा तो उसमें आपको पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा. ड्रिंक चाहिए तो आप कोई लस्सी बना लो थोड़ी सी, या कोई जैसे मैंने बोला फ्रूट काट के साइड में रख दीजिए, वो दे दीजिए. ठीक है, जैसे मैंने बोला अगेन, चावल दाल देने की जरूरत नहीं है. आप कुछ पुलाव बना लीजिए या उसमें पनीर वगैरह ग्रेट करके डाल दीजिए. ये टिक्की या कटलेट में भी आप पनीर, चीज, ये सब चीजें जिससे अच्छी कैलोरी और प्रोटीन भी मिलेगी, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं. घी डाल सकते हैं, घी भी बहुत अच्छा है अडल्ट और इनके लिए भी, पर अच्छा है बच्चों के लिए भी. पर घी अच्छा है इसलिए धपाधप नहीं डालना है 1-1 किलो. आप देखें कि 2 से 3, 1 से 2 चम्मच अडल्ट ले सकते हैं, और अगर बच्चे हैं
बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं तो आप हर खाने में 1-1 या 2-2 चम्मच डाल सकते हैं। दूसरी चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जितनी आप ऑयली चीजें खाएंगे, माने जितना घी या बटर वगैरह डाल के खाएंगे, उससे अर्ली सैटिस्फैक्शन हम कहते हैं, मतलब थोड़ा खाने से पेट भर जाना, ठीक है। So that the patients or the children can suffer. So just by eating smaller amount of food, the child or the adult would say कि मेरा पेट भर गया है, I'm feeling fuller. All right. So all these things you have to avoid. So that's why 1 to 2 teaspoon, that's it in a day for the adults, and for the children 2 to 3 teaspoons you can give. If you're not giving deep fried stuff, you can reduce accordingly. All right. And of course, as I said, you have to get your tailor-made diet plan from the dietitian according to the child's age and the treatment that the child is undergoing. There could be some blood parameters also accordingly, because sometimes the children also suffer from high blood sugar because of the medication like steroids or something. All right, so accordingly we have to decide the diet, but these are just in general दो तीन प्रश्न आए इसको लेकर। एक तो ये कि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए या चना मूंगफली भी बराबर काम करेगा, या वो चाहिए देना। दूसरी बात ये कि मैगी जो है वो बहुत पॉपुलर है बच्चों में, तो इज इट अ गुड आइडिया टू, वो तो आपने बताया कि वैसे सेवई में बना के दे सकते हैं, बट शुड मैगी बी एन एब्सोल्यूट नो? एंड व्हाट अबाउट चॉकलेट्स एंड आइसक्रीम्स? So first we come to the dry fruits and nuts. Okay, अगर आप खरीद सकते हैं तो प्लीज अखरोट बादाम आप दें। अगर कोई भी कारण से आप खरीद नहीं सकते हैं तो चना मूंगफली भी चलेगा, ठीक है। पर जो अखरोट बादाम में ताकत है, ओमेगा 3 है, ये सब आपको चना और मूंगफली से नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात मैगी का, जैसे मैंने बोला, अगर कोई कोई बच्चे बहुत स्मार्ट रहते हैं, ठीक है, तो उनको सेवइयां और मैगी में बहुत फर्क जानते हैं, तो आप आजकल होल व्हीट मैगी या मल्टीग्रेन मैगी भी मिलती है, तो आप वो यूज कीजिए, पर उसके अंदर का मसाला मत यूज कीजिए। आपकी फ्रेश वेजिटेबल्स, अंडा या पनीर आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा वो थोड़ी हेल्दी बनेगी। तो आपको देखना है कि मैगी का अमाउंट थोड़ा कम हो, सब्जियां और वो सब चीज का बहुत अमाउंट हो, और सब्जियां भी आप थोड़ी सी अच्छी सी लंबी लंबी काटेंगे, क्योंकि माने उसमें वो मैगी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और वो अलग, कोई कोई बच्चों को अलग निकालने की बहुत आदत रहती है, या बेस्ट ऑप्शन है सब्जियों का पेस्ट बना लीजिए, और मैगी हम जैसे पानी में कुक करते हैं, तो आप सब्जियों के पेस्ट में थोड़ा पानी डाल के उसमें आप कुक कीजिए। सो जिससे क्या होगा, वो अच्छी से ऐसी ग्रेवी जैसे बन जाएंगी और वो बच्चा उसके साथ खा पाएगा। तीसरा चीज चॉकलेट आइसक्रीम, अगेन वी टेल द पेशेंट्स दे कैन हैव इट, बट अगेन यू हैव टू सी वेदर द पेशेंट इज हैविंग कोल्ड एंड कॉफ ऑन कीमोथेरेपी है, तो मोस्टली कभी कभी कोल्ड एंड कॉफ होने की बहुत संभावना रहती है, तो वो टाइम पे आप अवॉइड कीजिए। दूसरी चीज, अच्छे कंपनी का अगर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में वगैरह भी मिलता है, तो वो सब आपको अवॉइड करना है, अच्छे कंपनी का। प्लस आइसक्रीम के ऊपर का आपको लेबल पढ़ना है, कभी कभी फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ रहता है, तो वो फ्रोजन डेजर्ट माने जो डालडा है, व्हाट वी कॉल मार्जरीन और द hydrogenated fat, it is made up of that, which is not healthy for anyone, adults or children. You can something which we on the ice cream packet, it would be written ice cream, so I don't want to take the brand names, but accordingly you can decide. So please read the labels also, especially for the parents and whoever is watching us, or the adults patients. So please read the labels and So last and all of that is taken in. Last question on fruits and vegetables before we move to something else. Fruits, yeah. There are certain fruits, I think, which are not allowed, right? Is there any, I mean, would you like to name a few fruits? Yeah, sure, and sure. any particular reason why they are not allowed? So during chemotherapy, we follow something called as neutropenic diet. Okay. So in India, it's very important to follow neutropenic diet because of the hygiene and all of that. Plus pesticide residue on the fruits. Okay. जो दवाई मारते हैं fruits के ऊपर या vegetables के ऊपर, इसलिए हम बोलते हैं कि तो पहली चीज कच्चा चीज मत खाइए. Don't eat raw vegetables if you're on chemotherapy. All right. So I know the neutropenia happens after chemotherapy, but just to be on safer side, we tell them till your entire chemotherapy cycles are over, you follow this. You can take thick skin fruits. Thick skin fruits, how to understand that? जो हम हाथ से निकालते हैं, whatever that we can remove from our hands. Something like orange, watermelon. Of course, we use it. We use the knife. Something which has thick skin, or thick skin, right? So orange, watermelon, संतरा, या जिसे बंगाली में कमला लेबू बोलते हैं, ठीक है, मौसम्बी, वाटरमेलन, खरबूजा, तरबूजा खा सकते हैं, ठीक है,
कीवी अगर आपके यहाँ पे मिलता है तो खाइए प्लीज, ऑलराइट। जो भी आपके यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स, आम खा सकते हैं, अभी आम सीजन में है, ठीक है। जो पतले छिलके के फ्रूट्स हैं जिसपे आपको एविडेंटली यू विल सी द पाउडर ऑन इट, जो व्हाइट कलर का रेसिड्यू दिखता है, जैसे अंगूर हो गए, ठीक है, और क्या हो गया, अंगूर है, ये सब पतले छिलके के जो फ्रूट्स हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। इवन ये आप खा सकते हैं, जो अनार वगैरह है, पोमोग्रेनेट जिसे कहते हैं, जो भी थिक स्किन फ्रूट्स है वो आप खा सकते हैं। थिन स्किन जैसे ग्रेप्स अलग अलग कलर के हो गए हैं, चेरी वगैरह हो गया, ठीक है। ये जो छोटे फ्रूट्स हैं जो जिसके छिलके हम नहीं निकाल सकते हाथ से, या छिलके निकाल के हम खाते नहीं है यूजुअली, वो नहीं खाना है। इवन एप्पल फॉर दैट मैटर, ठीक है, apple is also thin skinned, okay, so please don't eat that during your chemotherapy. Post that your counts are normal, ठीक है, all of that can be allowed. Again you have to see the potassium levels also. Sometimes the potassium level is 6, so all these fruits and everything has to be stopped. So as I said, you have to see all your biochemical parameters and everything, but otherwise all these fruits can be allowed. But again, as I said, you have to wash it with warm water properly, not only because of the COVID, otherwise also wash it with properly warm water, cut it and eat it immediately. Don't keep the fruit and then I'll eat it in the afternoon, थोड़ा मैं शाम को ले लूंगी या वैसे दे दूंगी बच्चे को, तो वैसा नहीं करना है आपको, तो तुरंत के तुरंत काट के आप दे सकते हैं। कई लोग प्रीति ऐसे कहते हैं कि खाना हमें लोहे की कढ़ाई में बनाना चाहिए, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में जब खाना बनाते हैं, या vessel, if it is made of iron, then the iron content from the vessel comes into the food and it becomes richer. Is it a fact? Is it true? Should one encourage that? If you compare that with other aluminium or non-stick, ठीक है, तो आपको प्लीज आयन की कढ़ाई यूज कीजिए, पर उससे आयन बढ़ेगा ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वो आयन मेटल आयन है, हमारे बॉडी का आयन अलग रहता है। बट एज आई सेड, इफ यू कंपेयर एल्यूमिनियम वगैरह, जो एल्यूमिनियम अगर आप समझते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन या नॉन स्टिक बर्तन जो जिसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है उसमें खाना पकाना। तो अगर आप वो सब अवॉइड करके सिर्फ आयन की कढ़ाई पे बनाना चाहते हैं, पर वो इंटेंशन से नहीं कि जिससे आयन बढ़ेगा, ठीक है, तो आप अदरवाइज यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और मान लीजिए घर में हमेशा हम लोग सुनते हैं ना, प्रोटीन ज्यादा खाना चाहिए या आयरन ज्यादा खाना चाहिए, तो घर में ही क्या चीजें ऐसी हैं, मान लीजिए मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ खरीदना, तो मैं घर के क्या सामान है जो यूज कर सके जिससे कि हमारे प्रोटीन और आयरन का लेवल बराबर रहे। हम आयन की बात करते हैं, ठीक है, आयन एब्जॉर्प्शन के लिए आपको विटामिन सी की जरूरत है। अभी विटामिन सी किसमें होता है वो हम पहले देखते हैं। नींबू जैसे फल, जैसे संतरा मौसम्बी हो गया, ठीक है, इवन ये कलिंगड़ या जो कलिंगड़ माने वाटरमेलन, तरबूज, इससे भी आयन बहुत रहता है। तो अगर आप जब तरबूज खा रहे हैं तो उसमें नींबू का रस निचोड़ के खाइए, जिससे आयन एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अभी आयन में ऑलरेडी आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल, अभी जैसे समर्स हैं तो शायद हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं मिलेंगी। चिकन फिश में भी बहुत सारा आयन रहता है, चिकन में मोस्टली रहता है, ठीक है। प्लस आयन जो हीमोग्लोबिन हम कहते हैं, ग्लोबिन माने प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो सिर्फ आयन खाने से मतलब नहीं है अगर आप प्रोटीन नहीं अच्छे से लेंगे, ठीक है। तो आपको देखना है, वो हम प्रोटीन वाली चीजें के बारे में बात भी करेंगे। तो आयन के बारे में अभी बात करते हैं। हलीम के दाने, ये मराठी में इसे आड़िव कहते हैं, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी लैक्टेशन में इसके लड्डू बनाए जाते हैं, ठीक है। हिंदी में इसके हलीम कहते हैं। छोटे छोटे ब्राउन कलर के दाने दिखेंगे, जब आप उसको भिगोएंगे वो फलूदा सीड्स की तरह दिखेंगे, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा नींबू निचोड़ के वो आप ले सकते हैं, ठीक है, जिससे आपका आयन बढ़ेगा। प्लस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मैंने बोला, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स है, इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगी, आयरन भी मिलेगी, ठीक है। पर जैसे मैंने बोला बहुत आयरन कम है तो ऑफकोर्स आपको डॉक्टर से बात कर लेनी है, क्योंकि कभी कभी दवाई की वजह से भी या बीमारी की वजह से भी बहुत आयरन कम हो सकता है। प्रोटीन की अभी बात करें तो जैसे मैंने बोला, हीमोग्लोबिन इंप्रूव होने में आपको आयरन की भी जरूरत है, प्रोटीन की भी जरूरत है। तो अगर हम शाकाहारी सोर्स देखें, किसी वेजिटेरियन सोर्सेस, तो ये दाल, स्प्राउट्स, ऑलराइट, देन सत्तू, जो दालों से बनी हुई चीजें हैं, सत्तू, नट्स, ये सब में आपको प्रोटीन मिलेगा। नॉन वेजिटेरियन में चिकन, फिश, अंडा, ठीक है। मटन जो है, रेड मीट है, वो हम बोलते हैं कि रेयरली खाइए, जैसे 3 महीने में अगर एक बार खा लिया, क्योंकि उसमें बहुत सैचुरेटेड फैट रहता है।
प्रोसेस्ड मीट जैसे सलामीज वगैरह आते हैं, प्रोसेस्ड आप समझते हैं जो मार्केट में बना बनाए बहुत टाइम रखे हुए स्मोक्ड वगैरह, ये सब नहीं खाने हैं, ये प्रूवन कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक माने जो कैंसर बनाता है, तो ये नहीं लेना है। पनीर वगैरह खा सकते हैं, पनीर से जो पानी निकलता है जिसे वे बोलते हैं, और अगर आप घर पे पनीर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो पानी बनता है इससे आप रोटी वगैरह बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी वे प्रोटीन रहता है या वे वाटर जिसे कहते हैं। तो आप इसे जरूर पराठा रोटी बनाने में या सूप बनाने में, दाल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पनीर, चीज, दूध से बनी हुई चीजें, ये सब आपकी आ गई प्रोटीन में। अभी जब आपके पास कुछ भी नहीं हो, अगर आपके पास सिर्फ चावल और रोटी, दालें ऐसे भी हो, तो आपको देखना है, मैंने जैसे पहले भी बोला, आपको अनाज और प्रोटीन का एक कोई भी जो भी खाने का जो इंग्रेडिएंट है वो आपको मिक्स करके लेना है, जिससे प्रोटीन इंप्रूव हो। जैसे मैंने पहले भी बोला था, सत्तू भरी रोटी हो गई, दाल का पराठा हो गया, ठीक है, या पनीर का पराठा हो गया, या पनीर का पानी या पनीर दूध, जैसे मैंने बोला रोटी के आटे में दूध से आप बनाइए, इससे आपकी प्रोटीन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव होगी। तो अगर आप चिकन फिश भी नहीं खा रहे हैं तो आप ये सारी चीजें करिए, ठीक है। इससे आपको कैल्शियम भी मिलेगी, प्रोटीन भी मिलेगी, तो ये सब चीजें आपके बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट डाइट। एक और क्वेश्चन था कि ये जो न्यूट्रोपेनिक डाइट कोई चीज मतलब सच्ची में होती है क्या, और अगर होती है तो क्या कोई साइंटिफिक स्टडीज हैं उनको टू प्रूव इट्स वैल्यू? इज देयर समथिंग लाइक दैट व्हिच इज डज इट रियली एग्जिस्ट, एंड इज देयर अ साइंटिफिक study to prove it? Literature on neutropenic diet, all are foreign studies, okay? I mean, I have not come across, whoever has asked the question, if they have any Indian studies, I would love to know, because I have not come across, I mean, that's my maybe this shortfall, that I have not come across an Indian study saying that neutropenic diet doesn't help, because we cannot compare our setup, especially I would talk about my hospital, the kind of patients, they don't have staying facility, hygiene and everything. So I always tell my patients, no food will come and tell you that I'm causing you infection. We don't know. The air also can cause infection, right? So we are just preventing whichever are the preventable measures. We are just taking preventable measures. We don't want, anything to cause an issue in addition to whatever already the, issues are. So we just don't want to add on to it. So that's why we just on preventive basis, we all are doing it because of the kind of, scenario that we live in. Especially country like India. प्रीति जी, एक और बात पूछनी थी कि जैसे अपने यहाँ पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली बॉम्बे में बहुत सारे पेशेंट्स बाहर से आते हैं, दे आर स्टेइंग इन हाउसिंग societies or dharmshalas or something like that. Their choice of food is limited. We can tell them whatever we want to tell, but it may not be possible for them to get those type of foods. So what is the suggestion for that? And the second question is that suppose I'm staying in the house and once in a while I get tempted to eat maybe some fried food or something like that. So can I cheat on that or no? Sweet. Okay. So first question, if when we have patients staying outside, we tell them, if you don't have, as I said, we have to choose certain ingredients which are must-haves. So you cannot compromise on your protein. So we give supplements to the patients. Secondly, if you don't have curd setting facility, we tell them to take Tetra Pak curds. You get now 10 rupees. Again, any brand curds, which is like 200 grams curd that we get. All right. So you can use that. Okay, 200 grams or 100 grams, whatever is the, whether it's a child or an adult, accordingly you decide. You get paneer also, which is packed. All right. As I said, all my north side patients, our hospital patients, will have sattu along with them. All right. So we tell them to use that as well. दालें, स्प्राउट्स तो आपको कहीं पे भी मिलेंगी. तो मैंने जैसे बोला, आप उसमें ही आप खाना बना के उसमें न्यूट्रिशियस बना सकते हैं. ठीक है. अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ दाल चावल भी है, तो भी बहुत बढ़िया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें आप टेंशन ना ले. Some dharmshala or something don't allow eggs inside. All right, but if you get egg outside, so this is a secret, okay, don't tell anyone. We tell them to go outside, eat egg and come inside, okay, because if some children love eggs so much, some adults love eggs so much, but they are just not allowed because of their staying place. I don't want to take names again, but I just tell them, please go out and eat, but because there's no option. But since there's COVID, it's okay if you avoid it because there's no other option, but make sure at least your curd and milk, which you get it amply here now,
which you can use. So at least अगर आपके पास बाकी कुछ चीजें नहीं है, चिकन फिश वगैरह नहीं ये कर सकते, एटलीस्ट आप देखिए कि दूध दही दालें ये 3 चीजें आपके खाने में हो. नॉर्मली अनाज का इशू होता नहीं है, तो आप वो कर सकते हैं. और जैसे पहले भी किसी ने सजेस्ट किया था, नट्स नहीं है तो आप चना सिंग वगैरह ले सकते हैं, पर आप देखिए कि वो अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि सिंग पे भी वो ऐसे काला फंगस जैसा होता है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो आप अच्छी जगह से खरीदे और वो लेंगे तो चलेगा. और फ्राइड पूछा था आपने. हाँ सॉरी. हाँ जी, फ्राइड चीज. हाँ जी, अगर आपको ऐसा फ्राइड चीज अगर आपको कभी कभार घर पे बना के खानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैंने जैसे बोला मैदे की चीजें वगैरह अवॉइड कीजिए. कभी कभार पकोड़ा वगैरह लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं. तेल फिर से यूज किया हुआ है, डोंट रीयूज योर ऑयल. ओके, मीनिंग अभी कुछ बनाया हुआ है उसको फिर से आप ऑयल, फिर से वो ऑयल को यूज कर रहे हैं. वो रीयूजिंग ऑफ ऑयल इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर. But as I said, the more oily you will eat, you will feel fuller in a short time. All right. So that should not affect your next meal. So if you can promise me that you can eat once in a while, that's it. ठीक है. और एक और भी बात पूछनी थी कि जैसे ये अंजीर है या खजूर है, ये ठीक है कि नहीं. और दूसरी बात ये कि एनी पर्टिकुलर मीडियम ऑफ कुकिंग दैट यू रेकमेंड. आई नो यू सेड कि वन कैन मेक तेल या घी में, but any particular one that you think is better than the other? और अंजीर अभी आप किस में यूज कर रहे हैं वो जरूरी है, क्योंकि ये फ्रूट्स ड्राइड किए हुए हैं. अगर आप इसको कभी कभार यूज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अच्छे से गर्म, मैंने जैसे बोला सब चीजें आपको अच्छे से गर्म पानी से धो लेनी, बिकॉज ये फ्रूट्स ड्राई किए हुए हैं. ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर बहुत शायद पेस्टिसाइड्स वगैरह की भी रेसिड्यू रह सकती है, तो वो सब आपको करके आप कभी कभार यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं. ऑयल्स के बारे में, अभी आप कहाँ से आते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप महाराष्ट्र कर्नाटका साइड से हैं तो जो आपके यहाँ पे जो ऑयल सीड्स बनते हैं, जैसे अभी महाराष्ट्र का हम ले लें तो मूंगफली का तेल लें. रिफाइंड ऑयल से अच्छा है फिल्टर्ड ऑयल. तो आपको देखना है कि बॉटल के ऊपर फिल्टर्ड ऑयल लिखा रहेगा, या कच्चे घानी का. आजकल हाँ, आजकल बहुत सारे जगह पे आपको कच्चे घानी का भी तेल मिल जाता है, तो वो अगर मिलता है तो बेस्ट है. ठीक है, अगर आप नॉर्थ साइड के या बंगाल के वो साइड से हैं, यूपी बिहार बंगाली हैं, तो आप मस्टर्ड ऑयल, कच्चे घानी का मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं. महाराष्ट्र साइड में बहुत सारे जन कोकोनट ऑयल भी यूज करते हैं, पर ये जो कोल्ड प्रेस्ड वगैरह जो रहते हैं या वर्जिन ऑयल बोलते हैं, इसको पकाना नहीं है. अगर आप उसको पकाते हैं तो उसके पूरे गुण नष्ट हो जाते हैं. और more than the medium, I mean the quantum of the type of oil, you need to see the quantum of oil also. Meaning कुछ अच्छा है तो इसने बहुत सारा 3-4 लीटर खा लिया तो वैसे नहीं अच्छा है. ठीक है, एक जन को ओवरऑल अगर हेल्दी बीइंग है, हेल्दी माने उसको डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ अगर कैंसर की बीमारी है, तो आप आधा लीटर से पौना लीटर तक यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अगेन एज आई सेड, depending on the reports and the treatment and the age factor also, because as you age the intake also is not that much and the requirements are also not that much. As I said, according to the treatment, if the treatment is not very what do you say, not a radical treatment, means सिर्फ कीमो का गोली वगैरह है या ऐसा कुछ है, तो शायद इतनी माने इतना रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा. तो इसलिए उस हिसाब से, पर आधा लीटर ब्लैंकेटली आप ऑयल यूज कर सकते हैं. ऑयल घी मिला के आधा लीटर. ठीक है, तो इसलिए 1 चम्मच घी रहेगा और बाकी के 2-3 चम्मच आपका तेल रहेगा. ये एक जन का मैंने बताया. ठीक है, तो आपको जो आपके, तो इसलिए मैंने बोला या किसी ने टीवी पे बोला या पेपर में आया कि मस्टर्ड ऑयल अच्छा है इसलिए सब लोग मस्टर्ड ऑयल में यूज करेंगे, ये गलत बात है. जो आपके बोलते हैं ना, जो आपके जनरेशन, आपके दादा दादी जो तेल खाते थे वो आप तेल खाइए, बिकॉज आपका जेनेटिक मेकअप अकॉर्डिंगली है, तो वो तेल आपको सूट करेगा. ठीक है, तो रिफाइंड ऑयल, आई कैन सी सम क्वेश्चंस. रिफाइंड ऑयल इफ यू कैन अवॉइड इट वुड बी गुड. If you get filtered oil or कच्चे खाने का oil would be the best. But again, quantity is important. कुछ खाना कहते हैं कि गर्मी करते हैं और कुछ खाना कहते हैं कि उसकी तासीर ठंडी होती है. तो कौन सा वाला खाना is good for the patients? And can you name some food which is like, which is like creating heat in the body, and some which are cold in the body? So I spoke about pure ghee. Somebody has questioned. So pure ghee and तेल मिला के मैंने जैसे बोला आपका आधा लीटर का ये होना चाहिए. Somebody just asked the question. All right. अभी ये जो ठंडा और गर्म जो भी है, ये जो है
ये जो है ये आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने कहा, पर फिर भी अब अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपके सब फ्रूट्स, नाचनी बोलते हैं कि शरीर के लिए बहुत ठंडा है, ठीक है। कोई बोलते हैं कि गेहूं, चिकन, ये जो मांसाहारी तामसिक जो खाना है जिससे हीट करता है, पर मैंने जैसे बोला आपके स्टमक लेवल पे सब कुछ ठंडा ही है, बिकॉज आपका एसिड बहुत ऑलरेडी गर्म है जो खाना पचाता है, ठीक है। बट फिर भी जैसे मैंने बोला अभी बहुत गर्मी रहेगी यूपी बिहार साइड में, तो आप छाछ वगैरह है, सत्तू है, ये सब आप ले सकते हैं आराम से, जिससे आप, और सब्जा जो मैंने पहले भी बोला, नींबू पानी ले सकते हैं जिससे भी आपका शरीर ठंडा रहेगा। ओवरऑल आपको फ्लूइड देखना है कि आपका अच्छा रखे, अगर आप स्पेशली आप कोई रेडिकल ट्रीटमेंट में है, कीमो रेडिएशन वगैरह पे है, अदरवाइज ऑल्सो फ्लूइड इज इम्पोर्टेंट, पर ये है तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। अच्छा, नॉर्थ और साउथ अगर अपने कंट्री को डिवाइड कर दें तो फूड इन नॉर्थ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फूड इन द साउथ. So is there something that you recommend for people in the north and something for the people in the south? करेक्ट. नॉर्थ एंड साउथ मैंने जैसे बोला आपके यहाँ पे जो खाना बनता है, अभी साउथ में आप देखेंगे कि बहुत सारा कोकोनट यूज होता है, ठीक है। तो आप फ्रेश कोकोनट अगर आप यूज करते हैं खाने में तो आप प्लीज यूज कीजिए, पर जैसे मैंने बोला आपको आपका डाइट टेलर मेड करा लेना है कि अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अभी बहुत सारे सर्वाइवर्स भी हमें सुन रहे होंगे, तो आपको देखना है कि मोस्टली सर्वाइवर्स में मोटापा वगैरह भी बहुत देखा जाता है। मैं सब पेशेंट्स की नहीं बात कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। तो आपको पहले प्लीज एक क्वालिफाइड डाइटिशियन के पास जाना है। आपका ऑफकोर्स मैं नहीं कहूंगी कि आप नॉर्थ साइड है उनके जैसा खाना खाइए, आप जैसे ऑलमोस्ट पहले से खाना खा रहे हैं, पर आप देखिए कि मैदे की चीजें, जो सफेद रंग की चीजें हैं, अभी ब्राउन ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ठीक है, अभी ब्राउन ब्रेड मतलब अच्छा, व्हाइट ब्रेड मतलब अच्छा नहीं, ये बहुत ही सारे मिथ्स हैं, ठीक है। तो आपको मैदे की चीज जितनी आप अवॉइड करें, टोस्ट, खारी ब्रेड, बटर, ये सब जगह पे स्टेपल हैं, आप साउथ के ले लो या महाराष्ट्र के ले लो, तो ये सब आप जितना अवॉइड करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। बाकी आपके घर पे जो स्टेपल बनता आ रहा है, पर आपको देखना है कि आप सब्जियों का प्रमाण, आजकल वही ओवरऑल इंडिया का अगर हम बात करें तो अनाज हम बहुत खाते हैं, प्रोटीन की प्रमाण कम है, तो इसलिए आपको प्रोटीन, सब्जियां, फाइबर का क्वांटिटी अच्छे से रखना जरूरी है। तीसी, ये साउथ में नहीं ज्यादा ये होता है, तो नॉर्थ साइड में अगर तीसी मिलती है, जिसे अलसी भी कहते हैं, फ्लैक्सीड इंग्लिश में कहते हैं, that you can use it lightly roasted and take it. That has good amount of omega-3 fatty acid, good fiber in it, which is very good for your overall health. But as I again said, you have to speak to your dietitian also, because there are some medication which will not go with certain foods. So you will get guidance on that, but otherwise you can do this. And of course, you can eat whatever that your generations are been eating. Don't change your diet just by listening to somebody, please, and take appropriate decision with the help of your dietitian as well. चाय और कॉफी के बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि बहुत लोगों को, स्पेशली एडल्ट्स को, एक आदत होती है चाय कॉफी, और आज तो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो टोबैको के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? तो लेट्स हियर फ्रॉम यू on these things. About tea and coffee, I'll speak first. Okay. So जैसे हमने पहले हीमोग्लोबिन की बात करी, चाय में टैनिन रहता है, कॉफी में कैफीन रहता है। अब जितना आप चाय कॉफी लेंगे उतना वो हीमोग्लोबिन की मात्रा या आयरन की मात्रा भी कम करेगा, ठीक है। तो अगर आप जितने बार अभी चाय पी रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 बार पी रहे हैं, उसको आप हाफ कर दीजिए, ठीक है, और क्वांटिटी चाहिए तो कम कर दीजिए, तो शायद आपको 4 बार दिखेगा। तो अगर आप 2 बार ले रहे हैं तो उसको ही आप 4 बार में बना के लीजिए। तो धीरे धीरे वो आदत, एक दिन में मैंने कहा या किसी और ने कहा या डॉक्टर ने कहा इसलिए वो एकदम से बंद होगा, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज ये सालों की आदत रहती है। तो आप उसको क्वांटिटी कॉन्शियसली कम कीजिए। दूसरा चीज, ब्रेकफास्ट के साथ चाय कॉफी लेना बंद कीजिए, या सुबह सुबह उठने के बाद किसी को चाय लेने की आदत रहती है जस्ट बिकॉज उससे फ्रेश लगता है, या किसी किसी को मोशन का इश्यू है, तो ये सब थोड़ा बोलते हैं ना मेंटल मेकअप है, इसलिए आपको ये धीरे धीरे चेंज करना है। तो आप चाहिए तो थोड़ा सा गर्म पानी से शुरुआत कीजिए, थोड़ा हल्दी वगैरह डाल के, थोड़ा अदरक डाल के, जिससे आपकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव होगी, और चाय कॉफी भी आराम से धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे मैंने बोला, ना नहीं है, आप 1 से 2 कप चाय ले सकते हैं, अगर जिसको बहुत ही आदत है, किसी किसी का सर घूमने लगता है, मेरे से बहुत पेशेंट्स बोलते हैं, तो आप देखें। पर खाने में या ब्रेकफास्ट में आपको एटलीस्ट 1 से 2 घंटे का गैप रखना है जब आप कॉफी या चाय ले रहे हैं तो। और सुबह सुबह प्लीज चाय कॉफी मत लीजिए, उससे आपकी भूख मर जाती है आपके, क्योंकि देखो हम 8 घंटे का ऑलमोस्ट फास्ट करते हैं, हम रात को बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे हैं। सुबह सुबह आप कॉफी चाय लेंगे, जो शरीर एक्चुअली भूखा है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, उसमें आप चाय कॉफी बॉडी को देते हैं, तो
तो उसमें न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन भी ओवरऑल आपके पूरे दिन की कम, इससे आजकल ये चाय के ऊपर इतनी नई नई चीजें आ गई है, व्हाइट टी, ब्लैक टी, कुछ कोई स्पेसिफिक चाय आप बताएंगे जो ज्यादा अच्छी रहेगी? या चाय ब्लैक, नॉर्मल दूध डाली हुई जो हम यूज करते हैं वो यूज कीजिए. ग्रीन टी, एज आई सेड, देयर आर सर्टेन मेडिकेशन दैट वी कैन नॉट गिव ग्रीन टी विथ. ऑलराइट, सो ग्रीन टी जैसे मैंने बोला आप ले सकते हैं. अदरवाइज ओवरऑल अगर देखो सबको ग्रीन टी पसंद भी नहीं आती, वो हर एक का वो एक थोड़ा टेस्ट का. भाई ग्रीन टी में भी आप शहद शक्कर धपाधप डाल के लोगे तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, उससे मोटापा कम नहीं होगा. उससे अच्छा आप नॉर्मल चाय पी लो, ठीक है. तो वो ग्रीन टी का पर्पस आपको जानना जरूरी है. उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, पर वो कैसा है ना, एंटीऑक्सीडेंट भी आप 10 कप लेंगे तो उसकी एंटीऑक्सीडेंट की ये होगी, तो वो तो पीना बहुत ही ये है. पर एज आई सेड, अगर उसको आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप 4 कप नॉर्मल चाय पी रहे हैं उसकी जगह पे आप 2 कप ग्रीन टी पीते हो तो ऑफकोर्स उसमें कैलोरीज कम हो जाएंगी. तो अगर कोई मोटापा ये करना चाहता है तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं, जस्ट बिकॉज उसकी कैलोरी रिप्लेस होती है. पर ग्रीन टी इटसेल्फ विल बर्न फैट एंड ऑल ऑफ दैट इज नॉट द राइट थिंग टू डू. not the right thing to उतने do? क्वांटिटी में तो नहीं होगा. आई मीन सिर्फ 1 कप लेने से एकदम से फैट मेल्ट होना चालू हो जाए, वैसा नहीं. So while you are drinking your water, I'm going to ask you a question. There's a lot of stigma about being with a cancer patient and looking after a cancer patient. I know we've tried to break that stigma. We've tried to tell them it doesn't matter, but still वो रहता है. तो कम से कम अगर हम caregivers को या family members को कुछ assure कर सकें about the type of diet that they can have to build their immunity towards the disease, is there something like that we can tell them? तो कोविड की वजह से अभी सिंस वी आर इनटू दिस फेज, स्ट्रेस आप अदरवाइज भी देखें, कोई भी चीज का स्ट्रेस या घबराहट, फियर जो कहते हैं, दैट रिड्यूसेस योर इम्यूनिटी. सो प्लीज याद रखिए कुछ चीजों का, जैसे मैंने बोला, जो स्ट्रेस वगैरह से आप ज्यादा सोचते रहेंगे, स्पेशली द केयर गिवर्स, इफ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट समथिंग और यू आर स्केर्ड ऑफ समथिंग, you are reducing your immunity and you are solely and wholly there to take care of your patient. इसलिए आपको देखना है कि आप पहले थोड़ा सा रिलैक्स करें, शांत रहें. आपके सब डॉक्टर्स, हमारी पूरी टीम, overall in India, everybody is with you to help. So first is that assured, that's very important that you are very assured of that we all are here to help you all. Secondly, खाने में मैंने जैसे बोला, थोड़ा सा हम अभी इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड्स के बारे में बात करेंगे जो ओवरऑल पेशेंट के रिलेटिव्स को और पेशेंट को भी ठीक रहेगा. पर आपको देखना है कि पेशेंट्स को उसके साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं हो रहे. साइड इफेक्ट्स मतलब किसी किसी को, अभी फॉर एग्जांपल दालचीनी ले लिया जो लकड़ी जैसा मसाला होता है, उससे किसी किसी को बहुत हीट लगती है. तो आप देखो कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पेशेंट हो या आपको खुद को भी हो, अगर आपको ऐसे कुछ होता है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कीजिए. बट अदरवाइज जीरा है, साबुत जीरा जिसे क्यूमिन सीड्स कहते हैं, अजवाइन, ठीक है, जिसे कैरम सीड्स कहते हैं, सौंफ है, दालचीनी है, हल्दी है, अदरक है, जिंजर है, ठीक है. ये सब चीजें आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छी है. प्लस दही जिसे हम प्रोबायोटिक कहते हैं, सब्जियां, ठीक है. तो जो रिलेटिव है, ऑफ कोर्स दे कैन ईट ऑल रॉ वेजिटेबल्स एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट विल गिव यू गुड फाइबर. एज आई सेड, गुड फाइबर इज द फूड फॉर द गुड बैक्टीरियाज इन द बॉडी, so that will improve overall your immunity. Sleep is very important, all right. So for the patients also and for the relatives also, your sleep is very important. Your water intake is also very important. हम सिर्फ पेशेंट को देखते रह जाते हैं. बहुत सारे मेरे पेशेंट के रिलेटिव्स खाना भी नहीं खाते just because they have to get their whatever test done and all of that. So please look after yourself, then only you can look after somebody else, especially when you have a disease like a cancer in your family. It's very, I totally can relate to it and understand the gravity of it. But if you cannot if you won't take care of yourself, it will be very difficult, especially in COVID times when you have to take care doubly in terms of your immunity also. So I won't say that these foods will prevent COVID, but that will just improve your immunity. So there's no food that will prevent COVID, okay? So I just want to be very clear. So that's very important that you include all these foods in your diet, all right? So instead of tea, I would like to say you can make a kadha or a concoction of haldi, ginger, freshly squeezed lime in it, all right? So or whatever ingredients that I've said. Jeera you can add. So जीरा से शरीर में ठंडक भी आती है, जीरा और धनिये से, ठीक है. तो ये आप 1 कप भी ले लेते हैं
और जब भी आप, दूसरी बात मुझे बताना मैं चाहूंगी, जब हल्दी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, तो जब आप 1 चम्मच हल्दी ले रहे हैं, छोटा चम्मच, 1 चुटकी काली मिर्च डालिए, जिससे जो हल्दी में कर्क्यूमिन, आपने बहुत सुना होगा, बहुत हाइप वर्ड है कर्क्यूमिन, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे वो बॉडी में एब्जॉर्ब होने में, बॉडी में वो यूटिलाइज करने में, ब्लैक पेपर में पाइपरिन रहता है, जिससे वो इम्प्रूव होने में, एब्जॉर्प्शन इम्प्रूव होने में हेल्प करेगा। तो सिर्फ हल्दी मत यूज कीजिए, थोड़ा सा काली मिर्च, तुलसी आप डाल सकते हैं अगर आप उबाल रहे हैं तो अच्छे से। अगर तुलसी, अभी देखो बहुत सारी जगह पे तुलसी उगती भी नहीं है, I mean, तुलसी के प्लांट्स मिलते नहीं है, फिर से आपको वो फूल वाले के पास जाओ, which we are not getting it. If you have tulsi at home, please use it, there's no problem. Mint use, you can use, that is also fine, but just boil it, everything, strain it and take it. But as I said, again, you have to see some garam masalas out of this. All these whole masalas can cause little heat, can cause little acidity kind of a thing, or reflux in you. So if you have something like that, take in a smaller amount, dilute it with water, put lime juice, freshly cut lime juice, which will give you good vitamin C as well. All right. Other than that, use seeds. Okay. So तिल है, तीसी मैंने जैसे बोला, तीसी या अलसी है, ये सब यूज कीजिए, इससे आपको कैल्शियम मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, और ये सब आपको आसानी से मिल जाते हैं और आपके घर पे भी रहता है। ये सब अभी हम थोड़ा अवेयरनेस से यूज करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल। सो रोटी के ऊपर थोड़ा तिल लगा लिए, या भाकरी के ऊपर तिल लगा लिए और रोस्ट कर लिया, तो इससे भी बहुत आपको फायदा होगा, कैल्शियम वगैरह स्पेशली मिलने में। I keep saying last question, पर कुछ ना कुछ और आ जाता है, लेकिन अब जैसे अक्सर ना हम लोगों के यहाँ स्पेशली एक मेंटालिटी होती है फॉर फास्टिंग, फास्ट आ गया, त्योहार आ गया, कुछ भी हो गया, बट वी आर हैविंग कीमोथेरेपी और रेडिएशन ड्यूरिंग दैट टाइम, सो शुड वन फास्ट और शुड वन नॉट फास्ट? सो अगर आप सब मजहब में देखेंगे, कोई भी भगवान नहीं बोलता है कि आपके शरीर को आप त्रास दो या परेशान करके फास्ट कीजिए, ठीक है। तो पहले तो आपको फास्ट का पर्पस जानना जरूरी है। दूसरा चीज, अभी फास्टिंग में कोई कोई जन, अभी मैं महाराष्ट्र का बात करूंगी बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल हियर, सो दे वुड ईट लॉट ऑफ साबूदाना एंड ऑल ऑफ दैट, व्हिच इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग टू ईट nutrition wise. It will just give you little calories, but it's not giving you any protein. Overall, on treatment, according to me, no fast. I tell my Muslim patients also that, you know, Allah has always said, because I have a lot of friends and, you know, known who are Muslims. So it's already been said that if you are suffering from something, you are being, you know, you've been told it's okay if you don't do it. So please don't fast if you are on any treatment. So now I'll come back to COVID. It's sure. the biggest issue that is going on in town. I mean, obviously all of us are a little concerned about it. So how do you buy your vegetables and fruits? How do you bring them home? How do you keep them clean? How do you preserve them? If you can just tell about something about that. So as I said, fruits and vegetables, if you are getting it at home, as per even WHO guidelines, there are no specific that they have told to add and, you know, disinfect or something. Of course, first for COVID thing and otherwise also, you will first wash your hands. That's very important. Then you will touch all the vegetables. Okay, wash it with properly, you know, good amount of the flowing water. All right, meaning don't just, you know, take it in a vessel or something and just wash it. आप थोड़े बहते हुए पानी में अच्छे से साफ धो लीजिए, ठीक है, उसको सुखा लीजिए, then you can store it. All right. Some people add salt or turmeric also in it. If you want to add, you can, but that will not prevent COVID per se, because COVID is not spread through food. वो सिर्फ कभी कॉलीफ्लावर या फूल गोभी में थोड़े कीड़े वगैरह रह जाते हैं, तो उसमें वो गर्म पानी से वगैरह कर लेते हैं, जो हम नॉर्मली करते हैं, वो आप कर सकते हैं। सेकेंडली, आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो आपको उसको पानी में भिगो के अगर रखेंगे आप अच्छे से ज्यादा पानी में, उसको थोड़ा उठा के रख दीजिए। ऐसे ही डायरेक्टली आप उसको छन्नी पे मत डालिए, क्योंकि वो पूरी मिट्टी उसमें जाएगी। स्पेशली धनिया वगैरह है उसमें थोड़ा, या पालक वगैरह है, हरी सब्जी अभी जैसे बहुत कम मिल रही है, पर आप धनिया बहुत हम यूज करते हैं खाने में, सब्जियों में, तो उसमें आपको बहुत मिट्टी या ऐसे कुछ खराब हुए पत्ते दिखेंगे। इसलिए आपको अच्छे पहले पानी से अच्छे से धो लेना है, क्लीन कर लेना है, फिर उसको तौलिए पे वगैरह सुखा के रख दीजिए, फिर आप उसको स्टोर फ्रिज में रख सकते हैं करने के लिए। अब बहुत जल्दी बॉम्बे में मॉनसून आने वाली है। हाँ जी, हाँ जी।
एक और बड़ा कंसर्न है सबको कि कोविड तो था ही और साथ में अब बारिश और ये सब की भी प्रॉब्लम आएगी. So anything that you recommend during monsoon, the type of food, the type of precautions that one can take? So पहले तो बारिश में जैसे अभी समर्स है, you feel the thirst. I mean आपको प्यास लगती है, जैसे बारिश आएगी उतनी प्यास कम हो जाएगी, इसलिए आपको पहले देखना है फ्लूइड्स. तो उसमें अभी तो हम पानी वगैरह ले रहे हैं, तब भी आप सूप वगैरह ले सकते हैं. ठीक है, सूप में भी आप देखें कि आप दाल वगैरह डालें, ना कि सिर्फ सब्जी का पानी हो. और आप जब सूप बना रहे हैं, आपको स्ट्रेन नहीं करना है, छानना नहीं है. छानेंगे तो पूरी सब्जी हम कच्चे के डिब्बे में फेंकेंगे. ठीक है, तो आप सूप ले सकते हैं, दाल वाला सूप ले सकते हैं, जिससे थोड़ा वार्म रहेगा, अच्छा लगेगा. ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे बारिश होगी थोड़ा थोड़ा ठंड भी रहती है. तो ये सबसे प्लस मैंने जो इम्यून बूस्टिंग फूड्स लिखे हैं वो भी बताए हैं, वो आप यूज कीजिए, जिससे इम्यूनिटी इंप्रूव होगी. नींद अच्छे से रखिए. ठीक है, अगर आप बारिश में भीग के वगैरह कभी गलती से ऐसे हो गया या ऐसा कुछ है, क्योंकि अभी आजकल हमारे यहाँ पे जो बारिश मुंबई में जो आती है वो पूरी एकदम हवा के साथ आती है, तो आप कितना भी प्रोटेक्टेड हो, पूरे कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, तो आपको देखना है कि आप अच्छे से आपके नाखून कटे हुए हो. आई नो इट्स नॉट रिलेटेड न्यूट्रिशन, बट देन ओवरऑल ऑल दिस tips are very important. If you're wet, please change your clothes properly, and your head and hair and everything are being properly dried. And take your food on time, that's very important. Sleep, very important, because sleep will also improve your immunity. That's very important. Yeah. Okay, thank you very much. I think most of the questions have been answered. Can you unmute everybody for a minute so that if there is any particular question and people can put up their hands, if I can see their pictures and I know that they put up their hand, then I can ask them to ask a particular question. Rekha ji, if you are here, you wanted to ask something. I hope your question has been answered. Anybody else has any question? Somebody asked about takmariya. Takmariya is the same as sabja. In Gujarati, it's called takmariya. You can use takmariya. That's fine. Okay. Somebody asked in the chat box. That's I saw that question. They said about Tulsi and you answered the question. Tulsi. Yeah, I did that. And takmariya also somebody last question asked. So if there's anything, I can take it. Yeah, okay. Now I'm asking you a question. There's a lot of talk going on about having the homeopathy medicine for building up your immunity during COVID time. There are lots of messages which keep coming about various things that you should have, whether you should have hot water, whether you should have steam, whether you should not put on the air conditioner, all those things. So would you like to make any comment on that? About medicine, I won't comment because I am not an expert from homeopathy. So please speak to your doctor. Okay, I want to say to all the patients and caregiver, anything that you take apart from what your doctor has, I mean, if you wish to take anything that is apart from your doctor has prescribed, please speak to your doctor. Please keep your doctor in loop, because anything can affect, adversely. Secondly, about taking steam and all, in general, if you take it, it's okay, but that will prevent you from COVID. There is no evidence. Thirdly, what did you say? Garam pani. Okay, so there were many WhatsApp this thing that garam pani piyo, corona mar jayega. So that doesn't happen. Okay, so if you see in summers also, the numbers are actually increasing in Mumbai. Let's talk about Mumbai. Forget about the country for that matter. So it's a virus, right? So irrespective of temperature, it has no effect. So unless एकदम boiling water, I think आप गर्मी में जम पी नहीं सकते हैं. But I don't think उससे कुछ effect होगा. But normal अगर आप गर्म पानी, normal अगर आपको आदत है तो आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो अच्छा ही है. Irrespective. I mean, I drink warm water in all seasons because इससे थोड़ा पानी ज़्यादा जाता है body में. But that prevents COVID is not a right statement to do. And homeopathy, I'm sorry, I am not an expertise, and I don't have an expertise in it, so I won't comment on that. So I am not taking it. So sorry. So okay, maybe one question. There was somebody who want about adding jaggery into your tea instead of sugar. It's all same. Jaggery, sugar, everything same. Okay, and I think we can go on and on because diet is such a huge... Ma'am, sorry to interrupt. As I said, when I said no sugar and no jaggery, if the patient is not eating anything, so please give that time.
especially if the patient is palliative, there are no restriction. Above 70, 60, I mean, if the patient is not eating anything, not feeling like eating anything, okay, in spite of the dietary consultation and everything. So please, I would like to make a point here. If the patient is palliative, okay, so please give it whatever that the patient feels like eating. And if the patient is not eating anything, please give a bowl of kheer may make a difference, or a bowl of halwa will make a difference, or little ice cream from a good brand will make a difference. If you feel that, please go ahead and give that. But if the patient is diabetic or something, as I said, please speak to your dietitian and doctor before giving it. Otherwise, sugar will shoot up and there'll be a lot of issues. So please, yeah. So these are all tags along with it. So yeah. So that's about it. Thank you very much, Preeti. I think the questions on diet can never finish. There's so much that one needs to know. I would also request our viewers that if they would like a particular question, they can either send it on our email or which is admin@wecarecancer.